Okay, so last time we have seen the non-homogeneous equation. So let's start with today with the new, that is something called as exact differential equation. So what do you mean by exact differential equation? It is a solution of some system. For example, if I differentiate this system x cube y4 is equal to c, what do I get? If I start differentiating this system, what do I get? So 3x square. Let's write this system x cube y raised to 4 equal to c. Okay, differentiate both the side. So यहाँ पे x है, यहाँ पे y है. So what you will get? X cube into y4 का डेरिवेटिव होगा 4y cube into dy by dx plus if I take y4 as a constant, I will get x cube का derivative is 3x square is equal to 0. Derivative of constant is 0. So it is 3x square y4 equal to, if I multiply throughout by dx is what will happen, into dx plus ये क्या होगा 4x cube y cube into dy equal to 0. I have multiplied both the side by dx. Then I will get this equation which is written over here. मतलब क्या, इसका simplification का तरीका क्या है? If I have some function, say let's say u is equal to c, then its differentiation is like this: dabba u by dabba x into dx plus dabba u by dabba y into dy equal to 0. Okay, so what does this mean? Whatever is this function, first differentiate with respect to x, treating y constant. What do you get? 3x square into y raised to 4, that is nothing but dabba u by dabba x. And then ये कैसे मिलेगा? सेम फंक्शन को अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट रखेंगे तो क्या मिलेगा? x क्यूब कांस्टेंट, y रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4y क्यूब. So this is the better way to writing instead of writing all this step. Okay, so what I have done, I have used UV rule of differentiation over here when I solve first, and second may I have used this rule, dabba u by dabba x into dx plus dabba u by dabba y into dy is equal to 0. So कौन सा rule easy है? This method, that is second method, is very easy. Okay, so when you have some function and you are getting that derivative, you will get some equation. ये जो equation है, ये क्या, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Exact differential equation. Okay, now अभी यहाँ पे एक टेक्निक ऐसा है कि अगर मैंने इसमें से if I take out x square y square constant, what do I get? Sorry, x square y cube constant, what do I get? 3y 3y dx plus 4x dy 4x equal to 0. That means the same equation can be written as 3y dx plus 4x dy is equal to 0. But this is not an exact differential equation. I cannot find some function u x y which will give this equation as a solution. Okay, I cannot find a u x y is equal to c which after differentiating will give me this particular equation. So यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ कॉमन निकाला इसमें से और उसको दोनों तरफ से डिलीट कर दिया, क्योंकि I can take this in the denominator to the right hand side and 0 by something is always a 0. So ये जो equation है, after taking something out of it,
it is not giving me the exact differential equation. Okay, understood this? What is exact differential equation? You Yes, sir. have some function that is, यहाँ पे एक जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. बट अपने को क्या किया जाता है? अपने को इंस्टेड ऑफ दिस सॉल्यूशन उसको डिफरेंशिएट करने के बजाय एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है. एक्चुअल में ये वाला वैल्यू दिया जाता है और बोला जाता है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, solve this differential equation. So how to find that it is a exact differential equation, that we will going to see कि वो कौन सा कंडीशन है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एग्जैक्ट है या नहीं है. ओके, so what is the actual definition of exact differential equation? The exact differential equation of a first order is the equation which is obtained from its general solution by mere differentiation and without any other process of elimination or reduction. और वही explain किया है कि you have some solution that is u is equal to c, u xy is equal to c. उसका अगर आप differentiation करोगे तो आपको एक equation मिलेगा, differential equation, जिसको हम लोग बोलेंगे exact differential equation. ठीक है? सो ये जो हम लोग सिंप्लीफाई किया हुआ है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. ठीक है? सो द मेन थिंग इज यू वांट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब क्या है कि mx dx plus n dy is equal to डेरिवेटिव ऑफ u. देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है x क्यूब वाई फोर, ये क्या है u है. सो इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे आप du निकालोगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा? m dx प्लस n dy. ठीक है? सो नाउ we will see in what condition the given one will be the exact differential equation. For example, if we want this particular m dx plus n dy is equal to 0 is to be exact, then we have m dx plus n dy is equal to du. That means this is the function of x, which is some function of x and y. But what is this du? As I have already explained to you, this du is nothing but dA by u by dA by x into dx plus dA by u by dA by y into dy. Okay, this is your differential equation. Since we have m dx plus n dy is equal to 0, therefore m का वैल्यू क्या होगा कंपेयर करने के बाद? This is nothing but m. m is equal to dA by u by dA by x and n is equal to dA by u by dA by y. So if I take dA by m by dA by y, this is nothing but dA by u upon dA by x into dA by y. Sorry, यहाँ पे दिखेगा नहीं. So let me give this again. That is, we have m is equal to dA by u by dA by x and n is given by dA by u by dA by y. Then what is the dA by m upon dA by y? This is nothing but dA by u by dA by x into dA by y. And what is dA by n upon dA by x? Since यहाँ पे y है, so what you will get? dA by u upon dA by x into dA by y. So both this equation, that is dA by m by dA by y, is equal to dA by u upon dA by x upon dA by y, and dA by n by dA by x is equal to dA by u upon dA by x into dA by y. So what do we get? This implies that we must have dA by m by dA by y must be equal to dA by n by dA by x. So ये जो important condition है, ये condition जब भी satisfy होगा
This condition is called as condition of exactness. So if you want to check whether the given equation is exact or not, what do you check? You will check that dabba m by dabba y is same as dabba n by dabba x. For example, let us take the same question. What is the same question? Let us take this differential equation. 3x square y square dx is equal to 4x cube y cube dy. इस equation को, what is m over here? Tell me what is the value of m, what is the value of n? m का value क्या है यहाँ पे? 3x square y raised to 4. What is n का value? 4x cube y cube. So tell me what is the value of m when you take the differentiation, partial differentiation with respect to y. So 3x square ऐसे ही रहेगा, which is the constant with respect to y. What is the derivative of y raised to 4? 4y raised to 3. 4y cube. 4y cube is the derivative. So if I simplify it, 4 into 3, that is 12 x square y cube. Okay. What is dabba n by dabba x? अभी मैं second n को with respect to so I will take it outside 4y cube. What is the derivative of x cube? X cube with respect to x. ये सर 12x square होगा ना पूरा. So it is 12 x square y cube. So we got here 12 x square y cube. Dabba n by dabba x भी क्या है? 12 x square y cube. So we got dabba m by dabba y is same as dabba n by dabba x. So condition of exactness is satisfied. So this given equation is an exact differential equation. अभी हमने एक कन्वर्ट भी किया था. कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिला था? 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0. कोई तो चीज कांस्टेंट निकाला था, x क्यूब y 4. ये कांस्टेंट निकालने के बाद मुझे ये वैल्यू बाहर मिला था, 3y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0. अभी इसमें ये कंडीशन चेक करते हैं, डाबा m बाय डाबा y एंड डाबा n बाय डाबा x. क्या होगा यहाँ पे? यहाँ के m का वैल्यू क्या होगा इक्वेशन के लिए? 3x होगा. 3y. नहीं सॉरी 3y. एंड डाबा n क्या होगा? 4x. What is dabba m by dabba y? 3 होगा. No. x. dabba n by dabba x. इसको x से साथ डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 4x का डेरिवेटिव. 4. So are they equal? No. Dabba m by dabba y is not equal to dabba n by dabba x. So this equation is not an exact differential equation. So जो simplified करके जो मुझे equation मिला वो क्या है? Exact differentiation नहीं है. This is not an exact differential equation. Is it clear now? Is it clear? यहाँ पे क्यों Yes होना sir. चाहिए? ओके. नाउ अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका. पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देखते हैं, फिर बाद में हम लोग जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे. ओके पहले by dabba y is equal to dabba n by dabba x is a exact differential equation. Okay, now second thing is कि if you do not have exact differential equation, you can convert this into exact differential equation by multiplying both side. For example, ये जो equation है 3y dx plus 4x dy, इसको मैं अगर multiply करूंगा, what I will multiply? x cube y raised to cube.
एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड पे, एक्स क्यूब वाई क्यूब, देन आई विल गेट आफ्टर, सिंस मैंने कॉमन निकालने के बाद वो एग्जैक्ट का नॉन एग्जैक्ट बना था, सो मैं कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यस और नो? सो पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसमें से कुछ कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमको क्या मिला, when we take the common we got the नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जब नॉन एग्जैक्ट में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एग्जैक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकते हैं। हाँ, तो सर जिस क्या फैक्टर से, हाँ ये मैं बाद में समझाता हूँ, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये बाद में वापस रिपीट करेंगे हम लोग। सो जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है उसको कोई चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। कोई फंक्शन एक्स एंड वाई का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ये सिर्फ याद में रखो कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को मैं अगर कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। और ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जिस इक्वेशन से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के डिफरेंट रूल्स देखेंगे। सो what is the we have seen डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है तो उसको एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम लोग फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, सो लेट मी इरेज ऑल दिस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला टेक 2 minutes and memorize this formula. If it is an exact differential equation, then its solution is given by integration m dx plus the terms in n which do not contain x dy is equal to c. Okay? Yes, sir. Remember what you have to remember? Integration of this is nothing but what we are doing over here. ये जो इक्वेशन है m को एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस n में से कोई टर्म लेंगे जिसमें x नहीं है। ओके, n में से सभी टर्म नहीं लेंगे, वॉट एवर टर्म्स हियर विच डू नॉट कंटेन x। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस इज योर m, दिस इज योर n, सो इसका सोल्यूशन मैं कैसे दूंगा, फर्स्ट m एज इट इज दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने अभी तक एग्जैक्ट इक्वेशन है नहीं चेक किया है, बट मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट है ऐसे मान के चलो अभी फॉर अ टाइम बीइंग, तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में x है, 2xy में x है, वी विल नॉट कंसिडर दिस। 3x स्क्वायर में x है, वी विल नॉट कंसिडर दिस, बट द थर्ड टर्म दैट इज y स्क्वायर do not contain x, so I will take y square dy is equal to 0. अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, m को एज इट इज लेना है, डिफरेंशिएट करना है, n में से जो भी है वो लेने, थर्ड टर्म y स्क्वायर डू नॉट कंटेन x, सो वी टेक y स्क्वायर। अगर एक भी टर्म आपके पास ऐसा नहीं मिला तो वी विल टेक सेकेंड इंटीग्रेशन 0 dy. If all the terms in n contains x, then we take the second integration as 0 dy. Understood this formula एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं? Yes, sir. Okay, so solution इससे दिया जाता है. Okay, so let us solve this differential equation. What is m over here? Compare with m dx plus n dy.
2x 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर एंड n का वैल्यू क्या है 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब. नाउ व्हाट इज डेबा m बाय डेबा y? पहला टर्म देखो 2x स्क्वायर, इसमें एक भी y का टर्म नहीं है, सो इट इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y. 2x स्क्वायर इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y. डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? 0 आएगा. 2x square is constant with respect to y, so derivative is 0. Now second term 6xy, 6x is outside of the 6x is constant with respect to y, it can be taken outside, so minus 6x can be taken outside. What is the derivative of y? Derivative of y is 1 with respect to y. And lastly what is 2y square, sorry y square. Y square का derivative क्या होगा? 2y 2y. So it is minus 6x plus 2y. So it can be simplified to 2y minus 6x. What about डेबा n by डेबा x? डेबा n by डेबा x अभी क्या करेंगे? y के टर्म को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे. So it is 2y into derivative of x 1 minus 3x square. What is the derivative? Minus 3 common. minus 6x हाँ. And derivative of x square. Derivative of x square क्या आएगा? 2x. 2x Derivative of, so you have multiplied and you got 2y minus 6x. यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है, so it is a constant term. Constant term का derivative is 0. Okay. So what is the value? 2y minus 6x. So यहाँ पे भी 2y minus 6x मिला, यहाँ पे भी 2y minus 6x मिला. So it is what? डेबा m by डेबा y is equal to डेबा n by डेबा x. So we can say that this differential equation is the exact differential equation. Then ये फॉर्मूला अप्लाई करो. ये फॉर्मूले के बाद आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? m dx प्लस टर्म विच डू नॉट कंटेन x dy इज इक्वल टू 0. सो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m का इंटीग्रेशन मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस the terms free from x is equal to c. Okay, so what is integration of 2x square? 2x cube upon 3 upon 3 minus अभी with respect to x से differentiate करेंगे, so 6y is a constant here. What is the derivative, integration of x? x square upon 2 X square upon 2 plus y square is a constant. What is the derivative of 1? Derivative of 1 क्या आता है? 0 What is integration of 1? y square is equal to c. ये आपका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन. दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. ओके, मैंने y क्यूब का नहीं किया ना, सो सॉरी. मैंने इसमें वाई स्क्वायर डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? y क्यूब अपॉन 3. सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस. 6/2 इज 3. सो सिंप्लीफाई करके मुझे ये मिला. व्हाट अबाउट दिस? टेल मी द वैल्यू ऑफ m, टेल मी द वैल्यू ऑफ n. sir m equal to 3y हाँ, plus 2x cube 2x cube. What is n? and n is where it is okay 3x plus y minus 1 3x plus y minus 1. बाकी भी जवाब दे सकते हैं.
सिर्फ शहनाज क्यों बोल रही है? व्हाट इज डाबा एम बाय डाबा वाई? फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू y? सर यू नीड टू रिवाइज. हाँ, सर 3 आएगा ना? प्लस this is what 2x cube with respect to y. It is a constant term. कांस्टेंट, तो फिर वो 0. Why it is constant? Because we are differentiating with respect to y, whereas this term is in Y. terms of x. Therefore, treating x as a constant. जब आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो तो x को क्या करना है? आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है. 2x क्यूब को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, 0 रहेगा. What is डाबा n by डाबा x? 1 डाबा n -1 0 आएगा. नहीं, आप देखो, थोड़ा सोचो इसके बारे में. फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x? डाबा n बाय डाबा x है. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x? 3. देन oh what my is god, the okay, derivative? 0. What is this? So हमेशा याद रखो, आप क्या कर रहे हो? m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो और n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, नॉट अ वाइस वर्सा. m को विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, n को विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो. सो x विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो 3x इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज 3 into x. x का डेरिवेटिव इज 1. y is constant now. Y is constant, therefore the value is 0. -1 is constant, so value is 0. So दोनों का वैल्यू क्या है? इधर भी 3 मिला, इधर भी 3 मिला. So what we got dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x. So this is nothing but exact differential equation. This is what? Exact differential equation. So solution क्या होगा इसका? What is the formula? Integration m dx plus integration n terms free from x. n के जो भी terms free from x है into dy equal to constant term, that is equal to c. So करो, इंटीग्रेशन करो. फर्स्ट क्या होगा? 3y plus 2x cube into dx plus what is, which are terms free from x? ये free from x है क्या? This is not free from x. No. Second term is free from x, third term is free from x. So y minus 1 into dy is equal to c. So we will solve this equation. What is integration of 3y? 3y is a constant. What is the integration of 1? Integration of 1 is x. Plus 2. What is integration of x cube? x raised to 4 by 4. X raised to 4 by 4. 4. Plus what is integration of y with respect to y? 1. Y square upon 2. इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y किया है. सिंपल है कि अगर आपका इंटीग्रेशन x dx क्या आएगा? 1. नहीं, व्हाट इज द फॉर्मूला? x raised to n upon n plus 1. x raised to n plus 1 upon n plus 1. That is x raised to 1 plus 1, that is 2 upon 2. So what is integration y dy? y square by 2. Y square by 2 minus what is integration of 1 is you will get 3xy plus x raised to 4 by 2 plus y square
by 2 minus y equal to 0. Okay, so this is your solution. So what we have checked, we have first checked whether the given differential equation is exact or not, and if it is an exact differential equation, we have found out what is the solution of given equation. Okay, so this is how you solve the exact differential equation. So exact differential equation अगर समझा है तो हम लोग शुरू करेंगे कि नॉन एग्जैक्ट को कैसे एग्जैक्ट बनाना है. Okay, we will see how to convert this non-exact differential equation to exact differential equation. Okay, so let us start with this. If your given differential equation is not exact, then it is possible to find a function uxy such that multiplying this function will make given differential equation exact. Okay, such a function is called integrating factor. Okay, such a function is called integrating factor. For example, if you have given 3y dx plus 4x dy equal to 0, what is m? M is equal to 3y, n is equal to 4x. Not exact differential equation because dabba m by dabba y equal to 3, dabba n by dabba x equal to 4, and they are not equal. So this is non-exact differential equation. If I multiply both sides by x cube y cube, I multiply both sides by x cube y, so it is x cube. We get 3 x cube y raised to 4 plus 4 x raised to 4 y cube dy, sorry this is dx इक्वल टू 0. अभी नेक्स्ट ये जो नया इक्वेशन मिला इसमें m क्या है और n क्या है. नए वैल्यू में m का वैल्यू है 3x क्यूब y रेज टू 4 एंड n का वैल्यू है 4x रेज टू 4 y cube. Okay, so what is dabba m by dabba y? 12 x cube y cube. dabba m by dabba y क्या होगा? 3x cube कांस्टेंट. I have differentiate with respect to y. y4 का क्या होगा? 4y cube. And what is the dabba n by dabba x? What is dabba n by dabba x? इसको with respect to ये करो. मैंने कहीं तो गड़बड़ किया है क्या? सर y रेज टू 4 है वो y क्यूब 3y स्क्वायर होगा. क्या? हुआ 3y dx plus 4x dy equal to 0. ठीक है. Then what I have done? I have taken dabba m by dabba x, sorry dabba y, which is equal to 3y का डेरिवेटिव आया 3, and what is dabba n?
बाय डाबा एक्स, इसका इंटीग्रेशन आया 4. So it is not exact differential equation. Then I have taken the integrating factor equal to x square y cube. Okay, I will take the integrating factor x square y cube. Then the first one will become, if I multiply integrating factor to both sides, I will get x square y cube into 3y dx plus 4x dy इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही मिलेगा. सो इट इज 3x स्क्वायर y रेज टू 4 dx प्लस 4x क्यूब y रेज टू क्यूब dy इक्वल टू 0. अभी नया वैल्यू ऑफ m क्या है? 3x स्क्वायर y रेज टू 4. नया वैल्यू ऑफ n क्या है? 4x क्यूब y रेज टू 3. Okay, so what is the derivative of m with respect to y? What is the derivative of m with respect to y? 3x square constant. What is the derivative of 4y raised to 4? Y raised to 4. 4y cube. Sorry, for yes, 4y. So 4 into 3 is 12. X cube as it is and y cube. Sorry, x square as it is, y cube. X square y cube and dabba n by dabba x is equal to, what is this now? इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. इट इज 12 x square and y cube is constant, so it is as it is, y cube. Okay, so this is, we got dabba n by dabba x. So we make the non-exact differential equation which is non-exact, which we convert into the second equation which is the exact differential equation. अभी मैं दोनों साइड एक ही फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन में कुछ फर्क होगा क्या? नहीं. The one is equivalent to 2, but one is non-exact, 2 is exact differential equation. So non-exact को कोई फंक्शन से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कोई फंक्शन हमको निकालना पड़ेगा जिससे वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट बन जाएगा. ओके, सो जिस इक्वेशन से, फॉर एग्जांपल ये जो हम मल्टीप्लाई किए हैं, इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर will become exact differential equation. So what integrating factor क्या है वो समझा? What is integrating factor? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर है, ऐसा फंक्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. और आपको पता है व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? अभी दो एग्जांपल किया वो सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जैक्ट के. क्या है सॉल्यूशन? equals to dabba n upon dabba x. That is the condition of exact differential equation. वो चेक करने के लिए कि एग्जैक्ट है कि नहीं एग्जैक्ट. मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पता एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन, एक टाइम पे एक ही बोलो. इंटीग्रेशन. सर मैं बोलूं? हाँ बोलो. इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n जो टर्म में x नहीं रहेगा, सो द टर्म व्हिच डज नॉट कंटेन x ऑफ ये dy इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, सो ये समझा. इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, बट वी हैव टू टेक ओनली दोस टर्म व्हिच डू नॉट कंटेन x. n के वही टर्म्स लेंगे जिसमें x नहीं है. dy इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ
नाउ टेल मी, अभी आपके सब सामने सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है कैसे बताया डायरेक्टली। ओके, आपके मन में भी यही सवाल होगा। ये तो पता चल गया कि कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बनेगा, बट ये कौन सा फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा? दैट इज द क्वेश्चन अराइजेस। आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है, बट आपके पास जो है वो नॉन एग्जैक्ट है। तो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट वो जो फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता करेंगे? So there are different rules to calculate this integrating factor. So क्या है? There are various rules. हर एक इक्वेशन में कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे उसके रूल्स है। ओके, रूल नंबर 1, अभी वो रूल 1 by 1 हम देखेंगे। ओके, we will see the rules 1 by 1. The first rule says that कि if m dx plus n dy is homogeneous non-exact differential equation, then integrating factor is given by 1 upon mx plus ny. What do I say? If the equation is homogeneous non-exact differential equation, then the integrating factor is given by 1 plus n1. होमोजीनियस का मतलब क्या है? सर उसके अंदर ना कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब m should not have constant, n should not have constant, and every term of m should have the equal degree. Every term of m should have equal degree. मतलब फर्स्ट टर्म है उसका डिग्री अगर सम मतलब x का डिग्री प्लस y का डिग्री आप टोटल करोगे तो सम जो है 3 आया। तो हर एक टर्म का इन m में जितने भी टर्म है हर एक टर्म का आपको डिग्री क्या चाहिए? 3 ही चाहिए। सिमिलरली हर एक टर्म इन n डिग्री क्या चाहिए? 3 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस यूज दिस इक्वेशन। अपना क्या था अभी, क्या हमने बताया? 3y dx प्लस 4x dy इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4x है, दोनों टर्म में कांस्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट 3y प्लस 1 होता तो ये क्या होता? होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि हम लोग एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हैं। सो वी डोंट वांट दिस कांस्टेंट टर्म टू बी इन द पिक्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या चेक करना है आपको? इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री क्या है? 1 है। सो दोनों का डिग्री सेम है, तो ये क्या हुआ? होमोजीनियस हुआ। फिर हम क्या बोल रहे हैं? हमने ऑलरेडी चेक किया कि इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? क्या आएगा इस रूल से? 1 अपॉन mx प्लस ny, mx प्लस ny. So calculate the integrating factor. What is this? 1 upon ये क्या होगा? 3y into x. 3y into x is 3xy. ny, n क्या है? 4x है। 4x में y को ऐड करो तो क्या होगा? 4xy. So इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? 1 upon 3xy plus 4xy. It is 1 upon 7xy. So 1 upon 7xy. जैसे मैंने पहले बोला था, पहले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या दिया था? बाय गेस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अभी मैं कोई और अभी और कोई और डिफरेंशियल मतलब और कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रहा हूँ बाय दिस फॉर्मूला। सो क्या आएगा इक्वेशन? 3y अपॉन 7xy इट इज 1 अपॉन 3 अपॉन 7x, राइट? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट डू आई गेट? 3 अपॉन 7x इंटू डी एक्स प्लस अभी 4x अपॉन 7xy इट इज 4 अपॉन 7y dy इक्वल टू
0, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इट इज, पहले चेक करो कि ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। लेट अस सी वेदर व्हाट इज डाबा m बाय डाबा y। 0, क्योंकि x के टर्म में y के टर्म है ही नहीं। व्हाट इज डाबा n बाय डाबा x? सेकेंड, इसमें x के टर्म है नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ओके, सो इट इज 0, बोथ इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 3/7x into dx plus plus integration of 4/7y dy equal to dy 0 constant. इक्वल टू सी। इक्वल टू सी के जगह पे मैं ले रहा हूँ log c। ये थोड़ा स्मार्टनेस करेंगे थोड़ा। व्हाट इज 3/7x? 3/7 आउटसाइड लूंगा तो क्या होगा? 1/x, दैट इज log ऑफ x। 3/7 log of x plus Plus 4/7 4/7 log of y. log of y equal to log c। सिंप्लीफाई दिस, इसको मैं ऊपर लेके सॉल्व करता हूँ। log ऑफ x रेशियो equal to log c, equal to log c। what is this? log a plus log b क्या होता है? log of Log a into b. log of x raised to 7 3/7 y raised to 4/7 is equal to log c। log will get cancel out. What do you get? x raised to 3/7 into y raised to 4/7. So I will write this as x cube y raised to 4 raised to 1/7 is equal to log c के log बाहर निकालेंगे तो c। So दोनों तरफ 7 पावर लो, what you will get? x cube y raised to 4 is equal to c cube, c raised to 7। अब इस constant raised to 7 is another constant, so it is nothing but c। So x cube y raised to 4 is equal to c is the जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपने वो जो किया था ना, वो वाला मैंने बोला था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, उससे भी आपको सॉल्यूशन यही मिलता, एक्स क्यूब वाई रेज टू 4 इज इक्वल टू सी। सो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट यू कैन कन्वर्ट वन जनरल सॉल्यूशन टू इक्विवेलेंट अनदर जनरल सॉल्यूशन। सो ऐसा नहीं है कि किसी का अलग आया किसी का अलग आया तो आंसर गलत है। आंसर गलत नहीं है, प्रोसेस आप सही फॉलो किए हो तो जो भी आंसर मिलेगा वो सही है। अगर प्रोसेस में आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 4/7y के जगह पे 7y² लिख दिया, तो आगे का पूरा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर आपका प्रोसेस रॉन्ग नहीं है तो आपका जो भी सॉल्यूशन आया वो करेक्ट है। तो सेम सॉल्यूशन आई कैन राइट इन डिफरेंट वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लॉग में लिखना है तो व्हाट इज दिस? log x³ प्लस log y4, मतलब 3 log x प्लस 4 log 7 इक्वल टू समथिंग का सही है। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया है तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या है? सही है। ठीक है, कितना टाइम बचा है अपने पास? वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, देखते हैं, एक प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट इसमें ही करते हैं। ओके, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज बहुत बड़ा है शायद। हाँ, ओके, देयर इज बिग, नॉट कवर्ड इन 5 मिनट्स। सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। रूल 1 के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम लोग रूल 2 की तरफ जाएंगे। दिस इज रूल 1, देन रूल 2, रूल 3, रूल 4। सो there are various rules to convert the non-exact differential equation into exact differential equation, and they are applied in various conditions. For example, ये जो फर्स्ट रूल है वो कौन सी कंडीशन में अप्लाई होता है? What is the condition given over here?
द कंडीशन गिवन ओवर हियर इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब होमोजीनियस नहीं है तो ये वाला रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एक सम दे देता हूँ, उसमें ये रूल अप्लाई होगा कि नहीं आप मुझे बताओ, ठीक है। यू आर गोइंग टू टेल मी वेदर आई कैन अप्लाई दिस इन द एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर into dy, sorry, into dx plus x cube y plus y raised to 4 dy equal to 0. Can I apply this integrating factor in this term? Tell me. Yeah. Think upon it and tell me. सर ये तो होमोजेनियस ही है ना। What is the degree over here? 2 What is degree over here? 1 है, x का देखा है तो ओनली 1। x1 y3 मतलब degree total Yeah. is 3. 3 2 Yeah, here 2 2. Degree is 4. डिग्री तो 4। होमोजीनियस आपको हमेशा ये याद रखना है कि y इज इक्वल टू वी से कैंसिल आउट होते हैं। देखो हमने होमोजीनियस ये मेथड से भी किया है, y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इसमें तो x का टर्म कैंसिल आउट होता है, एक्स स्क्वायर का टर्म जो है कैंसिल, x इज इक्वल टू हम लिखते ओके, v के टर्म में मिलता है वो पूरा फंक्शन। याद आया कुछ होमोजीनियस कैसे Yes, सॉल्व करते yes, हैं sir. इससे? हाँ, तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका न्यूमरेटर में ये डिग्री 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 आएगा। सो ये और ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट होमोजीनियस है। बट ये दोनों इक्वल होने चाहिए जैसे कि मेरे इसमें है। सो लेट मी इरेज दिस। सो यहाँ पे कैलकुलेट, फर्स्ट का डिग्री क्या है, फर्स्ट का डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर 2, 3xy 6 है 2 पूरा। और 2, यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 4 2। सो एवरी डिग्री, एवरी टर्म, जितने भी टर्म आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम डिग्री होना चाहिए और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 1 होता और यहाँ पे 2xy माइनस 2 होता, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिग्री होता है 0, कांस्टेंट टर्म का डिग्री होता है 0। ओके, सो कांस्टेंट टर्म यू डोंट वांट द कांस्टेंट टर्म बिकॉज कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है, x का डिग्री 1 होता है, एक्स स्क्वायर 2, एक्स क्यूब 3 एंड सो ऑन। अगर दोनों टर्म है x एंड y, ऐड करो डिग्री, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, एडिशन गिव्स यू 2। सो एवरी टर्म शुड हैव इक्वल डिग्री, then only you will say that the given differential equation is a homogeneous differential equation, otherwise it is not homogeneous equation। और सिर्फ homogeneous के लिए आप कौन सा यूज करोगे, ये वाला टेक्निक यूज करोगे। Only for homogeneous case you will use this x, integrating factor is 1 upon mx plus ny. Is this clear? Yes, sir. So Yes, sir. let us stop it here. Okay.